वेलकम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू, इट इज टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो here we are discuss about plant tissues, which is very important topic for their tests, for your examination tests, for your job tests or entry tests. So here we are detailed discuss about plant tissue, it is structure and types. Basically tissues are the group of similar cells which perform a specific function is called tissue. Plant tissues are divided into two major categories, which are meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue are further divided into three categories: apical meristem, intraocular meristem, and lateral meristem. Permanent tissue are further divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue are further divided into parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And complex permanent tissue are further divided into xylem and phloem. Xylem and phloem further divided into different parts. So plant tissue basically are dermal tissue. They are according to their structure, they are further divided into three categories: dermal tissue like epidermis, stomatal tissue; ground tissue, parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma are ground tissue; and vascular tissue, xylem and phloem. So xylem and phloem, they are different in their functions and structure. So first, meristematic tissue. What are the meristematic tissue? These tissues are composed of cells which have the ability to divide it. Meristematic tissue are able to divide it. Means they divided are differentiated into different cells. The cells are thin-walled, have large nucleus and amount of small vacuoles. इनके जो सेल हैं उनके बाहर वाल होता है एक, उसके बाद इनका बड़ा न्यूक्लियस होता है और उसमें छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं. यूजुअली दे डू नॉट हैव इंट्रासेल्यूलर स्पेस, इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता. सो द सेल आर अरेंज आर कॉम्पैक्टिवली, इसके लिए इसके सेल जो है वो ज़्यादातर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. Meristematic tissue are further divided into apical and lateral meristem. Apical meristem tissue are present at the apex of root and stem. Apical means they are found tip of the root and stem. According to their position, they are apical meristem, stem and root increase in length by the division of these cells. The type of growth is called primary growth. एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यूज़ के टाइप हैं वो टिप पे मौजूद होते हैं, वो प्लांट्स के रूट पे एंड शूट पे या स्टेम पे. बेसिकली ये ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन के तरह. सेल डिवीजन बाय मल्टीप्लाई होते हैं 1 to 2, 2 to 4, और इसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं. लेटरल मेरिस्टेम आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट. ये लेटरल साइड जो साइड हैं वो रूट और शूट की उस पर मौजूद होते हैं. बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द गिर्थ ऑफ प्लांट. इससे प्लांट्स की गिर्थ जो होती है वो इंक्रीज होती है. दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. उसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द meristematic टिश्यू. परमानेंट टिश्यू जो बनते हैं वो meristematic टिश्यू से बनते हैं. द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइडेड एंड मे हैव इंट्रासेल्यूलर स्पेस इन बिटवीन सेल्स. इन सेल्स में ये एबिलिटी नहीं होती, ये डिवाइडेड नहीं होते, ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते और इनमें स्पेस होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज़ के टू टाइप हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एपिडर्मल टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है सिर्फ एक ही किस्म के एक के सेल के बने होते हैं. इसके फर्दर क्लासेस हैं. एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड हैव कवर प्लांट बॉडी. एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है और पूरी प्लांट बॉडी को कवर करता है. दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू. ये बैरियर का काम करता है, चीज़ें एनवायरनमेंट से लेता है, प्लांट्स को पहुंचाता है, और प्लांट से लेता है, एनवायरनमेंट्स को देता है. इन रूट दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. ये जो जड़ों में मौजूद होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्बेशन के एंड मिनरल, एब्जॉर्ब कराते हैं पानी और मिनरल्स, मादनियात. On the stem and leaf they are secrete cutin. The coating of cutin is called cuticle which prevent evaporation. स्टेम में जो होते हैं ये सीक्रेट करते हैं क्यूटिन को जो एवापोरेशन को रोकती है. एपिडर्मल टिश्यू आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल रूट, हेयर्स एंड
स्टोमेटा। एपिडर्मल टिश्यू के कुछ खास फंक्शंस होते हैं, जैसे रूट हेयर है, एब्जॉर्बेशन करता है, स्टोमेटा है, एवापोरेशन वगैरह करता है। So another type of epidermal tissue, ground tissue are simple tissues made up of parenchyma cells. ये simple tissue हैं, parenchyma cell के बने होते हैं. parenchyma cell are most abundant in cell in plant cell. parenchyma ही ऐसे सेल हैं जो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं किसी भी पौधे में. overall they are spherical but flat at point of contact. ये सारे spherical होते हैं, पर जहाँ पर दूसरे से मिलते हैं वहाँ flat होते हैं. they have thin primary cell wall. इनका primary cell wall होता है. have large vacuole स्टोरेज ऑफ फूड. इनमें बड़ा सा वैक्यूल होता है जो खाने को स्टोर करता है. इन लीव दे आर कॉल्ड मेसोफिल्स एंड इन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो पत्ते हैं पौधों के उसमें मेसोफिल्स के नाम के इसको पहचाना जाता है जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं. इन अदर पार्ट्स दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. दूसरे जो पौधे कैसे हैं उनमें यह रेस्पिरेशन कराता है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है. Another type is supporting tissue. These tissues provide strength and flexibility to plant. ये पौधों को मजबूत करते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं. They are further divided into two types. ये further two types में divided हैं. Supporting tissue, these tissues provide strength, flexibility to plant. They are further divided into two types. Collenchyma, they are found in cortex beneath epiderm of young stem and the midrib of leaf in petals of flower. They are made up of elongated cell and unevenly thicked primary cell wall. They are flexible in function to support the organs in which they are found. Collenchyma cell mostly एपिड्रम के नीचे मौजूद होते हैं, स्टेम में, और लीव्स के मिडरम में मौजूद होते हैं. इनका जो काम है वो पौधों को सपोर्ट करना है. उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा. दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विथ रिच सेकेंडरी वॉल. देयर सेल वॉल आर हैरडन विथ लिग्निंग विथ मेन केमिकल कंपाउंड ऑफ वुड. मेचुरल स्क्लेरेन्काइमा सेल कैन नॉट इलोंगेटेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड. स्क्लेरेन्काइमा मोस्टली डेड सेल होते हैं जो वुड में मौजूद होते हैं, जो पौधे को मजबूत बनाते हैं. उसके बाद इसका पेरेन्काइमा मोस्ट पेरेन्काइमा सेल कैन डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड इंजरी. पेरेन्काइमा प्लांट्स के मोस्टली जो सेल होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, और जो पौधे की रिपेयरिंग है, इंजीनियरी वगैरह है, पौधे को कट लग गया उसको पूरा करने के लिए ये सेल काम आते हैं पौधे के. उसके बाद है सेकंड टाइप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ऐसे सेल जो एक से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं. जाइलम एंड फिलोम टिश्यू फाउंड ओनली इन वस्कुलर प्लांट. इनके दो किस्म हैं, जो जाइलम एंड फिलोम है वो सिर्फ वस्कुलर प्लांट्स में ही मौजूद होते हैं. ये कंपाउंड टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं. बेसिकली जाइलम एंड फिलोम ये हैं क्या, ये तो कंपाउंड टिश्यू है, यू नो ऑलरेडी. जाइलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस फ्राम रूट टू द एरियल पार्ट्स. जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू भी इसको बोलते हैं. कंडक्टिंग टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट कराता है पानी एंड डिजोल्व सब्सटेंस की, मिनरल्स की, रूट से लेकर जो ऊपर वाले एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स की उसमें. Due to the presence of lignin, the secondary wall of its cell is thick and rich. That is why xylem issue also provides support to the plant body. इसमें सेकेंडरी वाल मौजूद होता है वो जो थिक और रिच होता है, इसलिए जाइलम सपोर्ट करता है पौधे को, उसकी बॉडी को. टू मेन टाइप सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रेचियार्ड्स. दो किस्म के सेल मौजूद होते हैं जाइलम में, वेसल्स एंड ट्रेचियर सेल्स. वेसल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वाल. वेसल्स को थिक सेकेंडरी सेल वाल होता है. देयर सेल लेग एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स. ये एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा सा ट्यूब बनाते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है. ट्रेचियर्स आर मेड अप ऑफ सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स. ट्रेचियर्स सिलेंडर नुमा सेल से बने होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है फ्लोएम. फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. फ्लोएम का काम है लीफ से खाना उठा के पूरे प्लांट्स बॉडी को पहुंचाना. फ्लोएम बेसिकली कैरी ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी. फ्लोएम टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स. ये दो सेल्स से बना हुआ है,
सी ट्यूब से एंड कंपेनियन सेल से। Sieve tube cells are long and their end wall have small pores. सी ट्यूब सोल जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और उनके एंड पे छोटे से पोर्स होते हैं। मैनी सी ट्यूब जॉइंट टू फॉर्म अ लॉन्ग सी ट्यूब। बहुत सारे सी ट्यूब मिल के एक लॉन्ग सी ट्यूब बनाते हैं। कंपेनियन सेल आर पेरेंटेमेटस नैरो elongated cell and rarely closely associated with the sieve tubes. कंडक्शन विद द सीव ट्यूब्स इज डन थ्रू द प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ दी सेल। जो कंडक्शन होती है वो सीव ट्यूब के थ्रू होती है, जो उसकी वॉल्स हैं उसके ज़रिए होती है। दे हेल्प द सीव ट्यूब्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड मेक प्रोटीन फॉर सीव। थैंक यू सो मच। काइंडली फॉलो माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी फॉर बायोलॉजी।